Today, we are going to talk about the policy initiatives taken in the industrial sector. That means the steps taken by the government to improve the industrial sector after independence. We all know that at the time of independence, the Indian industrial sector was very, very backward. There was hardly any public sector. ठीक है, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ जैसे कि आयरन एंड स्टील, मशीन मेकिंग, टूल्स, इक्विपमेंट, they were not there. There were no fertilizer industry. The only few industries which were present were iron and steel, paper, cement, etc. On the whole, the industrial sector was very, very backward and underdeveloped. So the government had to take many steps to improve the industrial sector. Now let us look at the steps which were taken to improve the industrial sector after independence. The first step which was taken was that active role of public sector, or a dominant role was given to the public sector for the development of the Indian industrial sector. Now, what is the public sector? Public sector is the sector which is owned and operated by the government or the state. Now, the public sector was given a very, very important role in the development of the economy of the industrial sector. Why? Because there were a number of reasons. First was that there was hardly any demand for goods, for industrial goods in Indian economy. ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में लोग इतने गरीब थे कि डिमांड ही नहीं थी इंडस्ट्रियल गुड्स की, तो वो अपनी ज़रूरतें जो रोटी कपड़ा मकान ही पूरी कर पाते, तो देयर वाज नो डिमांड फॉर थिंग्स लाइक जैम्स एंड चीज़ एक्सेट्रा. तो ऐसी इंडस्ट्रीज लगती भी तो उनको बहुत ज़्यादा लॉसेस होते. सो हु अंडरटुक द रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन? द पब्लिक सेक्टर. It was also believed that to develop the economy on socialistic pattern क्या था? For the welfare of the people, the public sector was very, very essential. ठीक है, तो ये माना गया कि पब्लिक सेक्टर जो होगा वो लोगों को चीट नहीं करेगा, ज़्यादा एक्सेसिव प्राइसेस नहीं चार्ज करेगा. तो ऐसे में पब्लिक सेक्टर को ही क्या दिया गया? अहमियत दी गई. Another reason for the encouragement given to the public sector was because of the lack of private capital. People, private individuals to set up industry required capital or money. But as you know that the Indian people were very, very poor, they were not in the position to set up industries, right? So because of these reasons, active role was given to the public sector for the development of the Indian industrial sector. The second thing which was done was the IPR 1956. Okay, under the IPR 1956, the industries were divided into 3 categories. 3 categories में industries को divide किया गया. सबसे पहले वो industries which were owned and operated by the government or the state, which is called the public sector. Second was those industries in which both the public sector and the private sector would coexist, but a greater role was given to the public sector. For example, fertilizer making, chemical making, drugs, pharmaceuticals, etc. The third type of industries under IPR was the private sector. They were sectors like cosmetics, garment making, shoe making, etc. Now, the private sector was controlled under IPR by the process of licensing. ठीक है, the government said that if you want to set up a private industry, you required a license. License was like a permission which had to be taken from the government to set up any industry. Now, licensing was done to control the private sector, and licensing was used by the government फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड एरियाज़. इसका मतलब यह है कि अगर आपको अपनी इंडस्ट्री बैकवर्ड एरिया में लगानी है तो सरकार आसानी से लाइसेंस दे देती थी. लाइसेंस वाज रिक्वायर्ड फॉर एवरीथिंग. अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए, प्रोडक्ट की डाइवर्सिफिकेशन के लिए, प्रोडक्ट को की टेक्नोलॉजी चेंज करने के लिए, हर चीज़ के लिए क्या चाहिए था? लाइसेंसिंग की यूज़ थी. The third important step which was taken
to develop the industrial base was the development to the small scale industries. SSI means small scale industries, and the Carver committee was set up, which said that encouragement must be given to small scale industries. They have to play an important role in the development of industries in India. Now these small scale industries had various benefits. First is that they require less capital and therefore they can be easily set up. और सबको पता ही है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही इंडिया में ये थी कि लोगों के पास इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए पैसा नहीं था. तो सिंस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल, दे कुड बी easily set up. Then they would lead to employment generation. Why? Because small scale industries use labor intensive techniques. इसका मतलब है वो ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल करते हैं और कम मशीन्स का. So they would help in generation of employment. And they have locational flexibility. Locational flexibility का मतलब है कि small scale industries can be set up in any part. कौन सी होती हैं small scale industries? They were like, paper making, candle making, basket weaving, things like that. तो इसीलिए उनको क्या था, बहुत ही मतलब वो कहीं पर भी सेटअप की जा सकती थी. तो इसीलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया गया. ये वो इंडस्ट्रीज़ थी जहाँ पे पेड अप कैपिटल was less than 5 lakhs at the time of independence, right? So benefits were given, encouragement was given to the small scale industries. These were the 3 main steps which were taken for the development of the industrial sector. First was the dominant role of public sector. Second, IPR 1956, which divided industries into 3 categories and controlled the private industry through the process of licensing. And we have the small scale industries. They were given a lot of encouragement, right? These were the policy initiatives in the industrial sector. Now, for the foreign trade sector, a foreign trade policy to improve the foreign trade, an inward looking trade strategy or inward looking trade strategy or a policy of import substitution was followed. Import substitution का क्या मतलब था? इसका मतलब था कि जो चीज़ें आसानी से इंडिया में प्रोड्यूस हो की जा सकती हैं उनका इंपोर्ट ना किया जाए, उनको इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाए. सो बेसिकली वी वर सब्स्टिट्यूटिंग द इम्पोर्टेड गुड्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन. ठीक है. और इसको करने के लिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करने के लिए सरकार ने 2 टूल्स की मदद की. एक थी टैरिफ और एक था कोटा. ठीक है. टैरिफ क्या है? टैरिफ इज़ अ टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स. इससे क्या हो रहा था, जब एक इम्पोर्टेड गुड पे टैरिफ या टैक्स लगा दिया जाता था तो वो क्या हो जाता था, महंगा हो जाता था, और डोमेस्टिक गुड जो है वो क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा. तो इसीलिए जो इंडियंस हैं दे विल स्टार्ट यूजिंग डोमेस्टिक गुड. दिस विल डिस्करेज इम्पोर्ट्स. The second was quota. Second tool to follow was which was taken up for import substitution was quota. Quota was a quantitative restriction on imported goods. इसका मतलब ये है कि अगर 100 मशीन्स की ज़रूरत है तो सरकार कोटा लगा देती थी 30 मशीन्स पे. इसका मतलब ये है कि 30 मशीन्स तो आप बाहर से इंपोर्ट कर सकते थे, बट द remaining 100 minus 30 is what 70 machines had to be produced in the country itself. Now इसके बहुत से फ़ायदे थे import substitution के. बहुत से फ़ायदे क्या थे? इसके फ़ायदे ये थे कि ये इसलिए import substitution की गई कि इससे फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बचेगा. जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें फॉरेन कंट्रीज़ में क्या देना पड़ता है, फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज, जिसका मतलब डॉलर्स, पाउंड्स एक्सेट्रा में पेमेंट करनी पड़ती है. अगर हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा, हम कम इंपोर्ट्स का यूज़ करेंगे, हम कम इंपोर्ट करेंगे और इससे हमारी फॉरेन एक्सचेंज क्या होगी, बचेगी. इट विल लीड टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल बेस. डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है
अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इंडिया में लग जाएंगी, ठीक है। नहीं तो आप पहले क्या था, ब्रिटिश पीरियड में क्या था, सब कुछ ही क्या किया जाता था, इंपोर्ट किया जाता था। इसीलिए तो इंडिया में इंडस्ट्रीज़ डेवलप नहीं की गई, क्योंकि जो भी चाहिए था, चाहे कपड़ा, चाहे जूते, चाहे परफ्यूम्स, वो सब कुछ कहाँ से आ जाता था, ब्रिटेन से आ जाता था। तो सेटिंग अप ऑफ द इंडस्ट्रीज इन इंडिया विल लीड टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल बेस, देन इट वुड मेक इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट मतलब आत्मनिर्भर, ठीक है। अगर आप आत्मनिर्भर हैं तो कोई भी फॉरेन कंट्री आपके देश के अंदरूनी मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकती, राइट। सो देयर वुड बी नो इंटरफेरेंस फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड इट वुड ऑल्सो लीड टू जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कैसे, जब इंडस्ट्रीज़ लगेंगी देश के अंदर तो ऑटोमेटिकली रोज़गार या एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। सो these were the benefits of the policy of the import substitution or the inward looking trade strategy, ठीक है। ऑन द होल जो हमारी, अगर हम देखें तो जो हमारी इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड पॉलिसीज़ थी 1950 और 1990 के बीच में, उनके कुछ फ़ायदे या मेरिट्स थे और कुछ डीमेरिट्स थे। लेट्स लुक एट द इवैल्यूएशन ऑफ दीज। लेट्स लुक एट द मेरिट्स फर्स्ट। इनसे क्या फ़ायदा हुआ? सबसे पहला तो क्या हुआ, इंक्रीज़ इन जीडीपी हुआ। इंक्रीज़ इन जीडीपी क्यों हुआ? क्योंकि देश में इंडस्ट्रीज़ लगी, लोगों को रोज़गार मिला, लोगों की इनकम बढ़ी, इसके कारण जो जीडीपी है, जो ग्रोथ रेट है, वो क्या हुआ, बढ़ा। इट लेड टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल बेस। अगर पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को देखा जाए या पब्लिक सेक्टर की इंकरेजमेंट को देखा जाए तो इससे क्या हुआ, तरह तरह की अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज़ इंडिया में लगी, जैसे कि लोकोमोटिव, कार मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, ये सब जो हैं इंडिया में लगनी शुरू हो गई, जिसके कारण डाइवर्सिफिकेशन हुआ। इट लेड टू ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड एरियाज बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्शन टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। सरकार ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए उनको बहुत सी प्रोटेक्शन दी, जैसे कि उनको टैक्स बेनिफिट्स दिए गए, उनको लाइसेंसिंग आसान से मिल गया अगर वो बैकवर्ड एरियाज़ में सब सेटअप होने की कोशिश करी थी, उनको टैक्स बेनिफिट्स दिए गए, उनको बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लोन्स पे था वो कम चार्ज किया गया। तो ऐसे में बहुत सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं हमारे देश में लगी, जिसके कारण इट लेड टू डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड रीजन्स, ठीक है। इनके ये बेनिफिट्स थे जो हमने हमारी ट्रेड स्ट्रैटेजी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो हमने फॉलो की 1950 से 1990 के बीच में, पर इनकी बहुत सी कमियां, बहुत से डीमेरिट्स भी थे। लेट्स लुक एट द डीमेरिट्स। फर्स्ट लेट अस लुक एट द मिसयूज़ ऑफ लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग जैसे कि मैंने आपको बताया, अंडर द IPR 1956 which is the इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ थी वो कैसे कंट्रोल की, लाइसेंसिंग के द्वारा। लाइसेंस क्या था? लाइसेंस था परमिशन या परमिट। किस चीज़ का परमिशन? परमिट टू सेट अप एन इंडस्ट्री, ठीक है। नाउ लाइसेंसिंग से क्या हुआ, जो प्रोड्यूसर था उसका आधा समय तो क्या हो जाता था, वेस्ट हो जाता था लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए। सो दिस प्रोड्यूसर हैड नो टाइम टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ऑल्सो लाइसेंसिंग में क्या हुई लाइसेंसिंग से बहुत ज़्यादा करप्शन और किसको रेड टेपिज्म शुरू हुआ। रेड टेपिज्म का मतलब है फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल पे सरकारी दफ्तरों में घूमती रही लाइसेंस के लेने, कभी इस ऑफिस में जाओ, कभी उस ऑफिस में जाओ। इसके कारण करप्शन, उनको बहुत ज़्यादा घूस देनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। Also, the policy of licensing was misused by the big industrialists because they didn't want competition. तो वो क्या करते थे, छोटी इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस लेने से रोकते थे, राइट। सो लाइसेंसिंग पॉलिसी क्या हुआ, फ़ायदा होने के बजाय इससे नुकसान ज़्यादा हुआ। फिर जो हमारा पब्लिक सेक्टर था जिसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई, इसकी भी बहुत ही ये इनएफिशिएंट था। The public sector was incurring heavy losses. It was a drain on the government. क्यों? Because यहाँ टेक्नोलॉजी थी जो पुअर थी, जो सरकारी मुलाजिम थे, जो एम्प्लॉयज़ थे, they had job security, they had no incentive to work hard. So there was a lot of corruption in this sector. The technology was old. There was a long time taken
to make any changes to improve the quality, to improve the technology or anything. So जो public sector था, it remained inefficient. Also the public sector continued to operate in areas where it was no longer required. मतलब important areas में नहीं काम कर रहा था. It was working in unimportant sectors like lipstick making, like bread making. ये सब चीज़ें पब्लिक सेक्टर बना रहा था. ये तो आसानी से प्राइवेट सेक्टर भी बना सकता था. पब्लिक सेक्टर की कहाँ ज़रूरत थी? स्कूल्स में, रोड मेकिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में. पर वो वहाँ पे ना होकर जो पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट था, उनकी इंडस्ट्रीज़ कहाँ लग रही थी? वॉच मेकिंग, clothes making and stuff like that. So it continued to operate in areas where it was no longer required. So on the whole, the public sector remained inefficient and continued to be a drain on the wealth of the government. Then the quality of products were very, very poor, obviously, because of the policy of import substitution. The domestic industries, जो हमारे देश की इंडस्ट्रीज थी, उनको क्या किया गया? प्रोटेक्शन दी गई. किससे प्रोटेक्शन? फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन. क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ की जो इंडस्ट्रीज़ थी वो तो पहले ही डेवलप थी, तो इसीलिए इंडियन इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए सरकार ने टैरिफ और कोटा का इस्तेमाल किया ताकि वो इंडियन इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट कर सकें फॉरेन कंपटीशन से. इस फॉरेन कंपटीशन की प्रोटेक्शन से क्या हुआ? जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी, दे रिमेंड इनएफिशिएंट, दे कंटिन्यूड टू यूज़ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एंड द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विच दे वर मेकिंग वाज वेरी, वेरी पुअर. तो अगर हम 1990 से पहले हम देखें, फ्रिज की बात करें तो वीडियोकॉन और गोदरेज बड़े बड़े फ्रिज बना रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा स्पेस घेरते थे, पर उनके अंदर कैपेसिटी नहीं थी. तो क्यों नहीं थी? क्योंकि ये वर्लपूल और ये जो अभी आपके हैं जो लेटेस्ट कंपनीज़ हैं फ्रिजेस की, वो नहीं थी. ठीक है. तो ऑल्सो इट लेड टू डिक्रीज़ इन फॉरेन एक्सचेंज. क्यों डिक्रीज़ इन फॉरेन एक्सचेंज? क्योंकि क्या हुआ कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी, दे रिमेन्ड इनएफिशिएंट एंड दे कुड नॉट कम्पीट विद द फॉरेन इंडस्ट्रीज़. तो जो हमारा फोकस रहा इंडिया का, वो एक्सपोर्ट प्रमोशन पे आया ही नहीं. अगर आप दूसरे देशों को देखें, जैसे कि सिंगापुर एक्सेट्रा, हांगकॉन्ग, हाउ हैव दे डेवलप्ड? दे हैव डेवलप्ड बाय एक्सपोर्टिंग देयर गुड्स. चाइना, दे हैव डेवलप्ड बाय एक्सपोर्टिंग देयर गुड्स. बट इन इंडिया द फोकस रिमेन्ड ऑन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन रादर दैन एक्सपोर्ट प्रमोशन. इसी कारण से इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़े नहीं. क्यों? क्योंकि इंडिया डिड नॉट एक्सपोर्ट एनी गुड्स एंड सर्विसेज. हमारा यही उद्देश्य रहा कि हम बाहर से जो इम्पोर्ट्स हैं उनको रोक सकें और ना कि हम क्या कर सकें, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दें. सो ऑन द होल द फॉरेन एक्सचेंज इंस्टेड ऑफ बीइंग सेव्ड and increase, it in fact decrease. So these were the merits and demerits of the policies which were followed in the industrial and the trade sector between 1950 to 1990.